Hello students, very good morning. All of you warmly welcome in this YouTube channel that has been planned to provide you uh, online classes in English from ML Convent Group of Schools. So students, in your class nowadays we are we are studying the prose section, second chapter of the prose section, that was Nelson Mandela long walk to freedom has been started in our last lecture. So students, as I had introduced the chapter, that this whatever is in our syllabus is the extract that has been extracted from his autobiography Long Walk to Freedom. And here Mandela speaks about a historic occasion. And what was that historic occasion? That was the inauguration. Can we guess what the occasion might be? I had already told you it was the inauguration ceremony of what? It was the inauguration ceremony of Mr. Mandela's oath ceremony. Okay, so it was 10th May 1994 when Mr. Nelson Mandela, has taken his oath in a big Union buildings amphitheater in Pretoria. Okay, and in that ceremony, whatever speech was given by him, that has been expressed by Nelson Mandela in his autobiography, whose name was Long Walk to Freedom, and that is in our syllabus. In this we have done its first part, when Mr. Mandela was telling that the sun will never set on so glorious a human achievement. Okay, उनके इस मुताबिक जो वाइट रूल था अफ्रीका में वो ख़त्म हो गया था, और ये फर्स्ट टाइम था अफ्रीका की साउथ अफ्रीका की हिस्ट्री में जब कोई ब्लैक पर्सन प्रेसिडेंट के रूप में इलेक्ट हुआ था अफ्रीका का। वहाँ का जो अपार्थाइड था वो ख़त्म हो गया था, जो कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। डिस्क्रिमिनेशन दैट वाज ऑन द बेसिस ऑफ रेसिस, लोगों की जो प्रजाति होती है, रेस होती है, उसके बेस पे जो वहाँ पे अपार्थाइड डिस्क्रिमिनेशन फैला हुआ था, वो एक तरीके से ख़त्म हो गया था। एंड आपने ये भी पढ़ा कि उन्होंने ओथ सेरेमनी में ये भी बात किया कि द बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी, डिप्रिवेशन, सफरिंग, gender and other discrimination will also be removed. So let us start our next part, that is from the page number 19. Page number 19, first para. A few moments later, we all lifted our eyes in awe as the spectacular array of South African jets, helicopters and troop carriers rolled in perfect formation over the Union buildings. So here you have read in the last class the address of Mr. Nelson Mandela. हम लोगों ने पिछले क्लास में मिस्टर मंडेला के एड्रेस को पढ़ा था। वहाँ पे उन्होंने अपने शॉर्ट एड्रेस में सारी बातें बताई थी। अभी हम लोग उसके आगे क्या हुआ, व्हाट हैपेंड इन दैट इनॉग्रेशन सेरेमनी, उसके बारे में जो है
बात हो रही है. So just after the newly elected president's address to the audience, that was an impressive arrangement of fighter jets, helicopter and soldier transporters raised everyone's heads up in the sky. So as soon as the address of the newly elected president Mr. Mandela got over, just after that uh, his address, an impressive arrangement of fighter jets, okay, fighter jets, South African jets, helicopters, troop carriers, they all rode in perfect formation over the Union building. And due to their arrangement, they all lifted their eyes. वो सब लोग ऊपर की ओर देखने लगे. जब मिस्टर नेल्सन मंडेला का स्पीच खत्म हुआ, उसकी थोड़ी देर बाद क्या हुआ कि सबकी आंखें ऊपर की ओर उड़ गई यूनियन बिल्डिंग के ऊपर, क्योंकि वहां पर स्पेक्टेकुलर एरे था. What was that spectacular array? An impressive display, colorful and attractive display. Okay, so spectacular array था, impressive display हो रहा था. किस चीज का? साउथ अफ्रीकन जेट्स का, हेलीकॉप्टर्स का, ट्रूप कैरियर्स का. They all rode in perfect formation over the Union buildings. वो सब के सब यूनियन बिल्डिंग के ऊपर से perfect formation में दहाड़ते हुए निकले. It was not only a display of pinpoint precision and military force. Here it symbolized perfection as well as the military's respect and obedience towards the free country. ये जो था वो सिंबलाइज कर रहा था परफेक्शन को, परफेक्शन के साथ साथ मिलिट्री के रिस्पेक्ट को और इस फ्री कंट्री के ओबीडियंस के सेंस को भी. सब कुछ. इट वाज नॉट ओनली द डिस्प्ले ऑफ पिन पॉइंट प्रेसिशन. ये वहां के पिन पॉइंट प्रेसिशन का डिस्प्ले नहीं था. मींट केवल मिलिट्री उसका जो प्रेसिशन था उसका डिस्प्ले नहीं था, साथ ही साथ मिलिट्री फोर्स का डिस्प्ले था, बट अ डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ द मिलिट्रीज लॉयल्टी टू डेमोक्रेसी. आर यू क्लियर टू मी? मींट ये मिलिट्री फोर्स का सिर्फ और सिर्फ मिलिट्री फोर्स किस प्रकार से रिस्पेक्ट कर रही थी, वो उस चीज का जो है डिस्प्ले नहीं था. ये डिस्प्ले था कि मिलिट्री की लॉयल्टी डेमोक्रेसी के लिए क्या है, और ये डिस्प्ले था टू अ न्यू गवर्नमेंट दैट हैड बीन फ्रीली एंड फेयरली इलेक्टेड. ये एक डिस्प्ले था न्यू गवर्नमेंट का. ये डिस्प्ले था मिलिट्री की लॉयल्टी का न्यू गवर्नमेंट के प्रति, जो कि अभी अभी फेयरली इलेक्ट हुई है. मींट अपने इस प्रोसेसन के माध्यम से मिलिट्री अपने डिस्प्ले को नहीं दिखा रही थी कि किस प्रकार से वो डिस्प्ले कर सकती है. वो यहाँ पे अपनी लॉयल्टी का प्रदर्शन कर रही थी. मिलिट्री वॉज गिविंग the demonstration of its loyalty to the democracy, to the new government that had been freely and fairly elected. ये मिलिट्री फोर्स का अपना तरीका था लॉयल्टी शो करने का. It was the military's own way of showing its loyalty to the democracy, to the new government that has been newly, freely and fairly elected. जो कि अभी अभी वो नई गवर्नमेंट जो कि अभी अभी सही ढंग से जिसका चुनाव हुआ था. मिलिट्री अपनी लॉयल्टी को एक्सप्रेस कर रही थी.
Only moments before, the highest generals of the uh, South African Defence Force and Police, their chests bedecked with ribbons and medals from days gone by, saluted me and pledged their loyalty. Here, Mr. Mandela is expressing, is telling that how the high commanders who have won medals for their bravery also saluted and promised their loyalty. They all promised their loyalty. उन सब ने अपनी प्रॉमिस, अपनी लॉयल्टी को प्रॉमिस किया. Only moments before. जो हाईएस्ट जनरल थे साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स के एंड पुलिस के, whose chests were bedecked, whose chests were decorated with ribbons and medals that they had won for their bravery. उन सब के साथ bedecked by their all the ribbons, by their all the medals, they all were saluted, giving a salute to Mr. Mandela, and they all pledged their loyalty in front of him. I was not unmindful of the fact. I was not unmindful of the fact that not so many years before they would not have saluted but arrested me. Yes, meant he was aware of the fact that it was not the matter of many years when, in place of saluting them, they all have arrested him. मिस्टर मंडेला याद करते हैं उन दिनों को कि अभी बहुत दिन नहीं हुआ है. The fact that not so many years before, अभी ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, ज़्यादा साल नहीं हुए हैं, they would not have saluted. अभी पीछे की याद करता है तो कहता है उस समय ये लोग उसको सैल्यूट नहीं किए होते बल्कि उसको अरेस्ट किए होते हैं. क्योंकि आपको तो पता है मिस्टर मंडेला 30 इयर्स प्रिजन में बिताया है उन्होंने, और उन 30 इयर्स का इम्प्रिजनमेंट के दौरान यही पुलिस वाले, these all policemen, these all डिफेंस के जो कमांडर्स थे, उन्हीं लोगों ने इसको अरेस्ट किया होगा और इन्हीं लोगों ने इसको जो है प्रिजन में डाला होगा. So that is what he remembers. Mandela mentions that he was well aware that these commanders who were now saluting him would have arrested him under the previous rule as during the oppressive white supremacy. He was considered to be a criminal. लेकिन वो किसके रूल में? That was in the rule of the Britishers. That was in the rule of the white supremacy. In that white supremacy, according to the law that was made by those white people, he was the criminal. So, considering him to be a criminal, यही पुलिस वाले, यही डिफेंस के लोग मिस्टर मंडेला को अरेस्ट किए होते, जबकि आज यही लोग इनको सैल्यूट कर रहे हैं. फाइनली a chevron of Impala jets left a smoke trail of the black, red, green, blue and gold of the new South African flag. The air show finally ended by making up the South African flag in the sky from smoke beneath the jets. ये जो at last जो क्या हुआ, जो वहाँ का साउथ अफ्रीकन फ्लैग का जो एक पैटर्न था, अ पैटर्न इन द शेप ऑफ वी, इसमें उसको बनाया जो इम्पाला जेट्स थे उन लोगों ने स्मोक ट्रेल छोड़ करके, ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू एंड गोल्ड. ये पैटर्न था साउथ अफ्रीकन फ्लैग का,
और वो इम्पाला जेट्स के माध्यम से जो है एयर में बनाया गया। नाउ द डे वाज सिंबलाइज्ड फॉर मी बाय द प्लेइंग ऑफ आवर टू नेशनल एंथम्स and the vision of whites singing and this is the language. The day was symbolized for me by the playing of our two national anthems and the vision of whites singing this and blacks singing this, the old anthem of the republic. The author remembers the day as the playing of two national anthems of the country. ऑथर याद करता है किस प्रकार से यहाँ पर अफ्रीका में दो नेशनल एंथम गाए जाते थे, वन ऑफ द वाइट्स एंड द अदर द ब्लैक्स। एक उन वाइट पीपल का एंथम था, ओके, एंड अदर वाज द नेशनल एंथम ऑफ द ब्लैक पीपल, दैट ऑफ द ब्लैक्स। ऑन दैट डे बट एंड ब्लैक सिंगिंग डायदम द ओल्ड एंथम ऑफ द रिपब्लिक, जो कि इस रिपब्लिक का, साउथ अफ्रीकन रिपब्लिक का पुराना एंथम था, जो ब्लैक्स पीपल का जो एंथम था वो। Although that day neither group knew the lyrics of the anthem they once despised, they would soon know the words by heart. Yes, on that day no one knew the wordings of the anthem of the blacks, but Mandela was confident that everyone would soon learn this anthem that they once hated. उस दिन जितने भी लोग थे वहां पे, क्योंकि अभी तक वाइट गवर्नमेंट थी, इन वाइट गवर्नमेंट जो वाइट लोग थे उनकी जो नेशनल एंथम थी वही सब लोग गाते थे, तो उनका जो अपना नेशनल एंथम था शायद उसकी मीनिंग भी इनको ना पता हो। बट मंडेला वॉज कॉन्फिडेंट, मंडेला कॉन्फिडेंट थे कि बहुत ही कम समय में वो सब अपने अपने पुराने एंथम को सीख जाएंगे जिसको कि कभी वो हेट करते थे, that they once hated. Okay, that is what and here it is being told. Although that day neither group knew the lyrics of the anthem they once despised. ये जो लिरिक्स है जिसको कि कुछ दिन पहले वो सब डिस्पाइज करते थे, उसकी शायद लिरिक्स इनको नहीं पता होगी, लेकिन जल्दी ही ये लिरिक्स इन सबको याद हो जाएगी। On the day of the inauguration, I was overwhelmed with a sense of history in the first decade of 20th century. So here you can find out, on the day of the inaugural ceremony, the author was remembering the days of past when this whole system of apartheid emerged. उस इनॉग्रेशन के दिन जो ऑथर है मिस्टर मंडेला याद कर रहे थे उस दिन के, उस पास्ट के उस दिन को, when this whole system of the apartheid emerged, जब अपार्थाइड का ये पूरा सिस्टम था वो इमर्ज किया, शुरू हुआ। On the day of the inauguration, I was overwhelmed with a sense of history. उस हिस्ट्री को सोच के overwhelmed था author. In the first decade of the 20th century, most probably it was the first decade of the 20th century. 20th century के फर्स्ट डिकेड में मीन्ट 1901 से 1910 के बीच में। A few years after the bitter Anglo-Boer War, शायद ये जो एंग्लो-बोर वार हुआ था, that was a bitter Anglo-Boer War. Few years, उसके कुछ साल बाद, and before my own birth, और शायद it was before the birth of Mr. Mandela, शायद मंडेला के बर्थ के पहले, the white skinned peoples of South Africa patched up their differences and erected a system of racial domination.
सो आप यहाँ देख सकते हैं कि जो ऑथर है वो याद कर रहा है कि शायद ये 20वीं शताब्दी के फर्स्ट डिकेड की बात होगी, मतलब 1901 से 1910 के आसपास के बीच की बात होगी। ये शायद एंग्लो बोअर वार, जो कि काफी बिटर वार हुआ था, एंग्लो बोअर वार, उसके कुछ साल बाद और मिस्टर मंडेला के बर्थ के कुछ साल पहले की घटना है। When the white skinned people of South Africa, जबकि साउथ अफ्रीका के जो white skinned people थे वो पैच अप हो गए, पैच्ड अप their differences, अपने डिफरेंसेस पे पैच अप हो गए एंड इरेक्टेड, और उन लोगों ने रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का एक नया सिस्टम इरेक्ट किया। ओके, सो ये जो these white skinned people of South Africa patched up their differences and created a new system, and that system जो कि racial discrimination को जन्म दे रहा था। And this racial discrimination was against the dark skinned people of their own land, उनके खुद की धरती के, उनके खुद के देश के जो डार्क स्किन पीपल थे उनके प्रति रेशियल डिस्क्रिमिनेशन था। प्रजाति उनकी रेस के, वो व्हाइट थे, ये ब्लैक थे। इसकी शुरुआत किया साउथ अफ्रीका के ही जो व्हाइट स्किन पीपल थे उन्होंने, डार्क स्किन पीपल, उसी साउथ अफ्रीका के ही डार्क स्किन पीपल के अगेंस्ट एक नया सिस्टम बन गया ये। Are you clear to me? ये पूरा जो सिस्टम था उसकी शुरुआत इस तरीके से हुई। और शुरुआत कब हुई? वंस अगेन 3 क्लू यहाँ पे दिए गए। फर्स्ट पॉइंट, इट वॉज इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी। 20th सेंचुरी के फर्स्ट डिकेड में, मींट 1901 से 1910 के बीच में। सेकेंड पॉइंट, आफ्टर द बिटर एंग्लो बोअर वार। एंड द थर्ड पॉइंट, बिफोर द बर्थ ऑफ मिस्टर मंडेला। क्या हुआ? साउथ अफ्रीका के ही जो व्हाइट स्किन पीपल थे उन लोगों ने साउथ अफ्रीका के ही जो डार्क स्किन पीपल थे उनके लिए एक रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का सिस्टम इरेक्ट किया। वो सब के सब कलर पर, कि वो व्हाइट स्किन है तो वो सुपीरियर है, और जो ब्लैक स्किन है इसलिए वो inferior है। The structure they created formed the basis of one of the harshest, most inhuman societies the world has ever known. Yes. So, the structure that was created by those white skinned people, वो स्ट्रक्चर उन लोगों ने एक ऐसा स्ट्रक्चर क्रिएट किया जो कि बेस बनाया, दैट प्रोड्यूस्ड, दैट फॉर्म्ड अ बेस फॉर व्हाट? बेसिस ऑफ वन ऑफ द हार्शेस्ट, मोस्ट इनह्यूमन सोसाइटीज द वर्ल्ड हैज एवर नोन। उन लोगों ने इस दुनिया की सबसे जो हार्श, सबसे इनह्यूमन और सोसाइटी का जन्म दिया, जिसको कि आज की दुनिया ने देख लिया। अपार्थाइड का सिस्टम रिजल्ट हुआ। इट रिजल्टेड इन इनइक्वालिटी एंड इंफीरियर ट्रीटमेंट ऑफ डार्क स्किन पीपल। वहां से शुरू हुआ, जो डार्क स्किन पीपल है उनके साथ इनइक्वालिटी का और इंफीरियर ट्रीटमेंट का। They were deprived of their basic fundamental rights. Yes. Now, in the last decade of the 20th century and my own 8th decade as a man, that system had been overturned forever and replaced by one that recognized the rights and freedoms of all peoples, regardless of the color of their skin.
नाउ 20th सेंचुरी का जो अंतिम डिकेड था, इन द लास्ट डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी मीन 1990 से 2020 तक का समय था, और जो मेरा खुद का इस समय तक मैं खुद एक मैन के रूप में 80 इयर्स का हो चुका था, एंड माई ओन 8 डिकेड एज अ मैन, 8 डिकेड मीन 80 इयर्स, अब तक मैं भी 80 साल का हो गया था। दैट सिस्टम हैड बीन ओवरटर्न फॉरएवर। वो सिस्टम हर समय के लिए उखाड़ के फेंक दिया गया। मीन्ट इस पूरे सिस्टम की शुरुआत 19th सेंचुरी के फर्स्ट डिकेड में हुई, और ये सिस्टम 19th सेंचुरी के ही लास्ट डिकेड में जाके खत्म हो गया। टुडे दैट सिस्टम had come to an end, and that system had been replaced by one that recognized the rights and freedoms of all people. अभी उसके स्थान पे एक नया सिस्टम प्रिवेल कर गया है, नया सिस्टम एग्जिस्ट कर रहा है, जहां पर कि हर व्यक्ति के अपने राइट्स हैं, हर व्यक्ति के अपने फ्रीडम्स हैं, रिगार्डलेस ऑफ द कलर ऑफ देयर स्किन। उनकी स्किन का कलर जो कुछ भी हो, उनके कलर का स्किन चाहे डार्क हो चाहे व्हाइट हो, लेकिन उन सब के पास उनका अपना राइट है, उनका अपना फ्रीडम है। सो वो बेसिक फंडामेंटल राइट जो कि व्हाइट पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका के कारण शुरू हुआ था, जिसमें कि लोग अपने बेसिक फंडामेंटल राइट्स के लिए डिप्राइव कर दिए गए थे, वो सिस्टम खत्म हो गया। नाउ दैट डे हैड कम अबाउट through the unimaginable sacrifices of thousands of my people. It has not come to our life so easily. ये सब इतनी आसानी से नहीं हुआ। ऐसा नहीं हुआ कि जो ये कास्ट के बेस पे, कलर के बेस पे, जेंडर के बेस पे, एज के बेस पे ये जो अपार्थाइड है, ये जो डिस्क्रिमिनेशन का सिस्टम था, वो खत्म हुआ, तो ये इतनी आसानी से खत्म नहीं हुआ। सैक्रिफाइसेस के साथ खत्म हुआ है। आज हम ये कह पा रहे हैं कि वो सिस्टम खत्म हो गया, तो ऐसे खत्म नहीं हुआ है। That system had not come to an end so easily. This equal and free country was the result of sacrifices of countless other men and women who have fought all their lives for this day. आज जो इक्वलिटी हमको मिली है, हमारे देश को फ्रीडम मिली है, इस फ्रीडम के पीछे unimaginable sacrifices हैं, thousands of my people, हमारे देश के हजारों लोगों के sacrifices का। People whose suffering and courage can never be counted or repaid. ऐसे लोग थे वो जिनकी सफरिंग और जिनके करेज को किसी वे में हम काउंट नहीं कर सकते, उनको किसी भी तरीके से रीपे नहीं कर सकते। Here the author wishes if he could thank them all, but unfortunately they did not live to see the result of their courage. उन्होंने जो
ग्रेट सैक्रिफाइसेस किए हैं, उनकी सैक्रिफाइसेस को हम रिपे नहीं कर सकते. I felt that day, as I have on so many other days, that I was simply the sum of all those African patriots who had gone before me. I felt that day, उस दिन, on that day, when that inauguration ceremony has taken place, उस दिन मैंने ये महसूस किया that I have on so many other days कि काश हमारे पास वैसे ही ढेर सारे other days होते, that I was simply the sum of all those African patriots, कि मैं simply वो सभी जो simple African patriots थे जो हमसे पहले इस दुनिया को छोड़ के चले गए, सैक्रिफाइस करके चले गए अफ्रीका के फ्रीडम के लिए, उन सब के सम के रूप में मैं खड़ा होता. So that is what the author is wishing over there. The author wishes if he could thank them all, but unfortunately they did not live to see the result of their courage. Nelson Mandela gathered his courage and power from all these people and thus wishes to make them proud. यहाँ पे नेल्सन मंडेला ये कहना चाहते हैं कि उन्होंने जो कुछ किया, उनको जो पूरा करेज मिला, वो इन्हीं अफ्रीकन पैट्रियट के कारण मिला जो कि उनके पहले सैक्रिफाई किए थे अपनी लाइफ को. That long and noble line ended and now began again with me. वो जो लंबी और नोबल लाइन है उन सैक्रिफाइस मेकर्स की, वो हमसे खत्म होती है और फिर आज, क्योंकि उन्होंने सैक्रिफाइस किया अपार्थाइड को खत्म करने के लिए. आज अपार्थाइड खत्म हो गया, मैं उसका अंतिम पॉइंट हूं और आज से एक नई चैन, एक नई लाइन शुरू होती है. ओके, सो I was ended and now began again with me. I was pained that I was not able to thank them and that they were not able to see what their sacrifices had wrought. Author is highly pained. He is in pain with this point that he was not able to thank them. Author वो सभी जो अफ्रीका के फ्रीडम के लिए, अफ्रीका के इक्वलिटी, अफ्रीका के जो सबकी बराबरी है, उसकी इक्वलिटी के लिए, सबके साथ इक्वल ट्रीटमेंट हो, उसके लिए ये डिस्क्रिमिनेटरी जो व्यू है गवर्नमेंट का, उसको खत्म करने के लिए जो लोगों ने सैक्रिफाइस किया उनको थैंक्स करना चाहते हैं. But he was not able to thank them and that they were not able to see. और ये भी इसलिए भी दुखी है कि आज उनके उस अथक, उनके उस टीडियस, उनके उस हार्ड, उनके उस सैक्रिफाइसेस का रिजल्ट आज उनके सामने है कि अफ्रीका एक इंडिपेंडेंट कंट्री बन गया है, बट जो कुछ भी है उसको देखने के लिए वो यहाँ पे जिंदा नहीं है. सो स्टूडेंट्स, आज हम लोग यहीं तक करेंगे. वी शैल कंटिन्यू द चैप्टर इन द नेक्स्ट पार्ट. थैंक यू, हैव अ नाइस डे.